from me in this edition of News Pulse. Over to Padmaja Joshi for India Upfront. Thanks very much. It was an unthinking act of mimicry that has now turned into a full-fledged political war. The BJP took the episode of mimicry of Vice President Jagdeep Dhankar by TMC MP Kalyan Banerjee and hit the streets with it. The party called it an affront to the honour of the Vice President, farmers and the Jat community to which Dhankar belongs. Inside Parliament, BJP MPs stood in solidarity with the VP. Outside, lady MPs of the party held a protest at the Gandhi statue on Parliament complex. The Kisan Morcha of the party and Jat group separately also protested across various cities. But the biggest statement of solidarity came from the Prime Minister, who called Mr. Dhankar a day after the video of the TMC MP's mimicry being recorded by Congress MP Rahul Gandhi went viral. Mr. Dhankar said that in a telephone call, the Prime Minister expressed great pain at the quote-unquote abject theatrics of some MPs and also said that he too has been at the receiving end of such insults for 20 years. Subsequently, President Draupadi Murmu said that she was dismayed to see the manner in which the VP was humiliated. She added that elected representatives should be free to express themselves, but within the norms of dignity and courtesy. The Lok Sabha Speaker also conveyed dismay at the alleged misdemeanor, but across the board, in INDIA, there weren't many takers for the outrage. Kalyan Banerjee himself said that he intended no disrespect and mimicry is actually an art form. His party chief defended him, saying that the remark was made in a casual way. Some others brushed it off as an over-generalization and a hype created by the BJP only to deflect attention from the suspension of 143 parliamentarians. I did not want to hurt anyone. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, not seriously. क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना. ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है. इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो. मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ. हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है. मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है. The strongest attack came in the form of a reminder where the Congress and other parties said that the Prime Minister also had imitated Rahul Gandhi inside Parliament, and that is why to accuse the TMC and Congress for dishonouring the VP was disingenuous on the part of the Saffron Party. Nonetheless, today it was Rahul Gandhi who remained on target of the BJP for recording the ignoble act, a charge that he himself scoffed at. आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया. उन्होंने जोकर वाला काम पकड़, नकल करने का काम पकड़ लिया. आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं संसद के प्रांगण में, उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा. ये भी आज हमको देखना था. इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए. बान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया. मेरा वीडियो मेरे फोन पे है. मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं. किसी ने कुछ कहा ही नहीं है. अपनी कास्ट भी लिया है सर. किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया. नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है. ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है.
ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। Which brings us to the big questions. Will the double act of Kalyan Banerjee and Rahul Gandhi clear the pitch for their respective parties and the INDI alliance, especially since now it has been made into a direct appeal to the Jat community saying this is your insult, you must not forgive it. But for that to happen, will the charge itself stick, or is this going to be seen only as a diversionary tactic, as the TMC and the Congress are alleging? Let's take this across to Rajesh Chaudhary, spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Rohan Mitra, political analyst, Manisha Ahlawat, spokesperson of the RLD, and senior journalist Saban Naqvi. Rajesh Chaudhary, to you first. The Congress has said very clearly, in fact, Rahul Gandhi said today, ki what is the insult? What is this whole pradarshan and this dharna that the BJP is doing? देखिए, आज जिस तरह से देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया, राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है इसमें, मैं कहना चाहूंगा यदि राहुल गांधी जी के परिवार का कोई व्यक्ति उस सीट पे होता, किसी बड़े राजनीतिक घराने से कोई व्यक्ति उस सीट पे होता, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से होता, ममता जी के परिवार से होता, लालू जी के परिवार से होता, तो उसकी कोई मिमिक्री करता क्या? एक सामान्य किसान परिवार से आकर के कोई व्यक्ति अपना जीवन पूरा देश की सेवा में समर्पित किया, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम के दम पर एक मुकाम जीवन में हासिल किया, उसका इस तरह से अपमान करोगे? एक समाज का अपमान करोगे? तो किसान है, किसान के बेटे हैं, जाट के बेटे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां से बिरले ही लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, तो आप इस तरह से अपमानित करोगे, इस तरह से मजाक बनाओगे किसी का? ये पहली बार पर नहीं है। उनका जाट होने की वजह से तो मजाक नहीं उड़ाया गया। आप इस पे जातिगत राजनीति नहीं करे कि आप अचानक इसको जाट के सम्मान से जोड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, जीवन में कोई मुकाम हासिल करता है, जब बड़े पद पर जाता है, अच्छा काम करता है, तो समाज को गौरवान्वित महसूस होता है। समाज उसको लगता है कि हमारा कोई बीच का व्यक्ति, एक किसान परिवार का व्यक्ति जाकर के इतने बड़े पद पर पहुंचा है, तो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है वो समाज। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उसी समाज के व्यक्ति का यदि अपमान होता है तो आहत होता है ना साहब, कष्ट तो होगा। आप एक एक शब्द देखिए माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी की, किस तरह से वो पीड़ित हैं, किस तरह से वेदना उनके मन के अंदर है, किस तरह से दर्द झलक रहा है एक एक शब्द में जब वो बोल रहे हैं, तो उस दर्द को महसूस करना चाहिए। पर बहुत अपमानित हुआ है हमारा समाज। ओके, दर्द झलक रहा है और दर्द और अपमान कम्युनिटी भी फील करेगी। The outrages to the community. We also have one of the prominent voices from the community, Mr. Rakesh Tikait, who was also the face of the farmers' protest. I want to bring in the Congress, but let's make no mistake about it. This has turned into a political fight. What is the political importance of Jats? That's something that we need to bear in mind. Now remember, next year, everyone knows that we have the Lok Sabha elections, and here is where the Jat vote matters. Let's take a look at which are the areas that the Jat vote holds sway and how much is their preponderance. For one, in Punjab, you have a 4% Jat vote. In Haryana, there is a huge 29% Jat vote. In Western Uttar Pradesh, there is a 17% Jat vote. In Rajasthan also, although most people associate Jats with Uttar Pradesh, but in Rajasthan, a massive Jat presence is there, 15%, in Delhi it is 10%, and in Madhya Pradesh it is 5%. So is this going to come back and singe you politically, Rohan Mitra? They are saying very clearly, and now there are Jat organizations who are on the streets, they are saying nationwide agitation will be done. Jat ke samman mein, BJP is saying they are in Maidan. Good evening, Balbaja. First of all, I want to first put what Kalyan Banerjee has said. He has said that if the Honorable Vice President is hurt by his comments, he takes back his comments. He did not mean to insult him. So first and foremost, the member who's been filmed doing the mimicry, he himself is saying that he hasn't hurt the Vice President. And if he's hurt, he's sorry.
First issue. Second, Mr. Rahul Gandhi clearly said that he did not, he recorded it, but did he post it anywhere? Did he send it out anywhere? It is the national media which took out the video and they have posted it. Mr. Rahul Gandhi has nothing to do with it. These are 140 odd MPs who were suspended. They were sitting, they were protesting on issues, and there was a, what is mimicry? Mimicry cannot be an insult, Padmaja. Parody, satire is not an insult. We have seen then the how come BJP Kalyan personnel. Bansi never mimics Mamata Banerjee? If it is such a great work of art, then he should mimic his own chief minister in gatherings of the TMC. No, that, how do you know that if the videos will be there, if the private occasion videos, they must have done it. We cannot say that he hasn't done it elsewhere. We have seen what the BJP has done. When the BJP has come to campaign in Bengal, really? Do you spend your time in Congress meetings mimicking Rahul Gandhi? I don't want to talk. I mean, come on, Rohan Mitra, really. You know, this is a very facetious kind of an argument saying mimicry is a great art. Would you really sit in a Congress working committee meeting and say, today I will mimic Mrs. Gandhi? You won't do that, right? It's parody. You cannot take everything as an insult. When BJP comes to Bengal, they mimic the Bengali accent. They mimic us. They do the Didi O Didi. Is that not insulting? They used to make fun of Mr. Pranab Mukherjee, who was the president of India. Really? Who? Yes, who mimicked Pranab Mukherjee? The BJP MPs, the BJP MLAs, name them. BJP councillors. Name them because they should be named and shamed. Who was mimicking Pranab Mukherjee? Because your video cameras were not there, Padmaja. You cannot take... Sir, you were there and you saw them doing it. Let's name and shame them. If anyone in the BJP has sat there and mimicked Pranab Mukherjee or his accent or his way of speaking, they should be named and shamed. The Prime Minister has done it. What is the Didi O Didi? It's a catcall in Bengali. You cannot make a Didi O Didi comment against a woman in Bengal. That is an insult to the... You were talking about mimicry. Let's first settle that point. If BJP has gone and mimicked Mamata Banerjee and mimicked Pranab Mukherjee, then we must name and shame them. So the point, you're going away from the point. The point is mimicry is Padmaja. The Jat community wasn't insulted. The Vice President of India wasn't insulted. It was just a political issue to divert, which has clearly been explained. Okay. Today, Mr. Kharge ji has said in Rajya Sabha that he's a Dalit, his voice is top. So that means that the whole Dalit community... Okay, so just as a social experiment, and I say this with the greatest of respect, since you are a man of the arts and you think mimicry is an art, let's see you mimic somebody from the Congress party. Let's see it. You want me to mimic? That's not my... I'm not a talented person to mimic. I'm not going to be mimicking anybody. The BJP has gone... the BJP spokesperson said, the Gandhi family, Mr. Rahul Gandhi, Mrs. Sonia Gandhi, every minute they have been mimicked previously on record in the public platform by the BJP. Okay. Harshvardhan Tripathi. Gandhi's Hindi has been mimicked. Okay, let's come straight to the point. The video was put out, Harshvardhan Tripathi, जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर राहुल गांधी की नकल उतारी थी। कांग्रेस ने आज ये वीडियो निकाला और कह रहे हैं कि भाई जब प्रधानमंत्री कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब हंस रहे थे, वहां पे मंत्री बैठ करके टेबल थपथपा रहे थे, आज सबको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? पद्मजा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर राजनीति में रहने वाले लोग इस तरह की तुलना करेंगे, इस तरह के पैरेलल खींचेंगे, तो यानी उनकी समझ पूरी तरह से शून्य हो गई। सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, पीए संगमा, जीएमसी बाल योगी, क्या इनमें से किसी का कभी किसी ने मजाक बनाया क्या? यहां तक कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, क्या उनका कभी किसी ने मजाक बनाया? उनसे तो बहुत सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको एकदम नापसंद करते थे और उनका अपना भी जो विचार था, जिस तरह की वो चीजें रखते थे, उसमें बिल्कुल नापसंद थे वो। लेकिन क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का किसी ने मजाक बनाया? क्या कमाल करते हैं लोग। राजनीतिक समझ नहीं है या जानबूझकर इस तरह से टीवी पर नासमझ दिखते हैं, लेकिन उनको लगता है अपनी पार्टी के लिए कुछ करना है। और बड़ा आश्चर्य तब होता है जब आप डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसको आप पॉलिटिकल पोस्ट के साथ कंपेयर करते हो। इसका मतलब कि आपको पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी का अंदाजा ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी आइडिया। और आप जरा सोचिए कि सोनिया गांधी का मजाक उड़ाना, राहुल गांधी का मजाक उड़ाना, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाना, और मैं तो कहता हूं ना, क्या अटल जी का भी बहुत लोग मजाक उड़ाते होंगे? जवाहरलाल नेहरू बोलते थे, क्या क्या नहीं उनको लोहिया जी कह देते थे।
लेकिन राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप अलग बात होती है, और संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसके खिलाफ कोई शब्द निकालना ये असंवैधानिक है, अमर्यादित है, और इसकी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। सबा नकवी, ये नहीं हो सकता है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तुलना, ऐसे तो रैलियों में कुछ भी कहा जाता है और कोई भी आरोप भी लगाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी आरोप लगाए, कोई नरेंद्र मोदी किसी चीज से ऊपर नहीं है। और मैं एक और बात कहता हूं, सबके ध्यान में होगा, भाई राहुल गांधी की छवि पप्पू की बनाने की कोशिश की गई, तो नरेंद्र मोदी के लिए भी कांग्रेस के लोग फेंकू कहते थे, लेकिन जनता के मन में कौन सी छवि गई, किस तरह का आप बर्ताव करते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो चेयर है उनके प्रति कोई इस तरह की बात करे, यह शर्मनाक है, उसको माफी मांगनी चाहिए और बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उनके पक्ष में खड़े लोगों के लिए भी बड़ा, जिसको हम कहें कि एक चेतावनी जैसी है। Sabha Naqvi, so here's two questions. One, there is a distinction being made between mockery of a political rival and a constitutional post. Now, when it comes to mimicry, I remember Lalu ji was classic at it. He imitated multiple times. He imitated the Prime Minister. Once I remember he famously said कि Prime Minister keeps saying 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती तो भैंस की होती है. He said that, but nobody was doing प्रदर्शन against him saying कि आपने भैंसों का अपमान किया या आपने किसी community का अपमान किया. This, however, is different. And two, do you think this is going to be politically a hot potato for Congress? Given the importance of the Jat vote. If you'd allow me to speak, as long as the last person spoke, who's also a journalist, I will say one thing to you. I think what has preceded this is much more serious, with much more serious implications. Never in the history of this largest democracy, where the parliament has been called a temple, have 143 MPs been suspended. So I think everybody has, and I remember so many people mimicking Meera Kumar since I used to go to the house. It was constant. BJP chambers, they would mimic her. Yes, it was the recording of someone recording that mimicking was not in the hands of me. Meera Kumar was regularly mimicked because she had a certain manner and a way of speaking. In her case in particular, I recall this. And BJP guys used to do it. And I'm not going to tell you the names because one of them has passed away. And that person has also spoken about it is the job of the government to make sure that Parliament, right now we have newspapers in which opinions are published by the RSS and BJP routinely. Even they are outraged by what has happened in Parliament. You have passed an entirely the criminal laws, a new thing where sections of the laws are changing after chucking out the entire opposition because they wanted the Home Minister to talk about the breach of security for a party which is, I mean, that is the sequence of events. This is nothing. And if you want to talk about the Jat insult, the Jats, certainly, I mean, I don't think anybody on communal lines should be insulted. Meera Kumar was a Dalit and she was genuinely mocked. I have witnessed it myself. She was copied all the time by those who went to the house and sat with the LOPs of the Bharatiya Janata Party would have seen that. Okay, fair point. Respond, Harshvardhan ji. No, I mean, I don't know. He has his own point of view. Nobody, I have my own experience in life and I have my own value. For me, this is a very, very serious matter that you have thrown out, never in the history. Why has a powerful party like the BJP, which has just won elections, thrown out all of that instead of getting the Home Minister to make a statement? Okay, two questions. One, what about Meera Kumar when she was being mimicked? Two, even Mr. Khadge said today कि मैं भी दलित हूँ, मेरे बारे में 1000 चीजें लोग बोलते हैं, तो क्या पूरे दलित कम्युनिटी का अपमान हो गया? पे हो रहा है मजाक. Historically from a much weaker community. Okay, respond, Harshvardhan Tripathi. There are issues of parliament, there are issues of law, there is issue of democracy, there is a more larger issue of institutions. Okay, so diversionary tactic, and what about the mocking of Meera Kumar? Harshvardhan Tripathi. पन्जा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं सबा नकवी से कि ये सारा मसला देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का है, लेकिन सबा जी जो बता रही हैं वो किसी के लिए भी हर किसी का एक तरीका होता है और उसको 4 लोग कई बार होता है. वो मीरा कुमार जी भी हो सकती है, वो सबा नकवी हो सकती है, हो सकता मैं बोल रहा हूं, पद्मजा बोल रही, कोई भी किसी के लिए इस तरह का मिमिक कर सकता है. मिमिक्री कोई गलत नहीं है और कई बार आप जब उसको आपस में बात करते हैं कोई किसी की टोन पे कह देता है कि अरे वो तो इस तरह से बोलते हैं,
कोई कोई किसी की टोन में कुछ आता है तो उसको लोग कहते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर मीरा कुमार जी नहीं। तो आप मुझे जरा एक इंसिडेंट बताइए कि भाजपा के किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर किया, और मैं सुनना चाहूंगा, तब मैं दूसरा जवाब देता हूं। आप इसको बताइए, आपकी निजी बातचीत मत बताइए, आप अपनी पर्सनल बातचीत न बताइए। आपने एक चीज पकड़ ली है, इफ यू डोंट माइंड, माय संवैधानिक, हर एमपी संवैधानिक पद पे है, हर एमपी हिंदुस्तान के संविधान पे ओथ लेकर आता है, उसको आम जनता ने इलेक्ट किया है। आपने यू हैव कमिटेड, एंड दिस इज नॉट जस्ट माय ओपिनियन, ये सारे एडिटोरियल्स को आप पढ़ लीजिए, आप अंग्रेजी के अखबार के, वही अखबार जो भाजपा और संघ परिवार को बहुत जगह देते हैं। लोग बिल्कुल आश्चर्य, दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट कि पूरा ऑपोजिशन को आपने निकाल के इतने बड़े बड़े आप कानून लाए हैं। और ये एक बार पहले हुआ था जब आप किसान कानून लाए थे, जब आपने ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी राज्यसभा में, वो कानून आपको वापस लेना पड़ा। आपके एक स्पीकर जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है, वो उस आंदोलन का हिस्सा था। तो मैं अपने आप, आई एम वरीड अबाउट द इंस्टीट्यूशन, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू द कास्ट पॉलिटिक्स, इट इज an institution. But you don't think fair. So you have a point about how this is a diversion. My question is that politically, will that diversion work? Will it stick? How will the Jat parties be able to defend it? Ultimately, it will be about the politics. Padmaja, you want to ask me or yes, Sabha Naqvi. Just let Sabha Naqvi finish. I'll come to you. Padmaja, you know it because you are also very good with this data and all, that everywhere it's different. We know in Rajasthan, the Jats actually did not vote much for the BJP, but they did in UP, much larger than the RJD thought. Despite the farmer agitation. Despite the farmer agitation, Jats voted wholeheartedly. All of them voted, and the BJP state unit president is also a Jat, Bhupendra Chaudhary ji, and a very, very good ground worker. I mean, as a RSS Sangathan person, he understands. He does all that. I mean, I'm talking from the perspective of the BJP, right? There's a very good command over that region. Rajasthan, they did not. So I think there is in Haryana, Jats are not so close to the Haryana. The regime has been non-Jats, which generally vote for the Bharatiya Janata Party. So like all communities in India, there are complexities with the matter of the Jat. I don't know where. I think there are other issues which will matter. I don't think this is a... Okay, you don't think it will matter. Let's actually bring in Rakesh Tikait before Harshvardhan ji responds, and I also want to bring in the RLD at this point. But Rakesh Tikait ji, जल्दी से, क्योंकि thank you very much कि आप ये पूरी बातें सुन रहे थे। जो ये पूरा मुद्दा है, सबसे पहले इस पे आपका क्या स्टैंड है जो मिमिक्री की गई है जगदीप धनखड़ जी की? देखो, कुछ पद संवैधानिक हिसाब से ये रहता है कि उनकी ना नकल उतारी जाती, ना उनके कार्टून बनते। ये जब बचपन में भी हम पढ़ते थे तो ये छोटी क्लासों में भी बताया जाता था कि देश में इन पदों के राष्ट्रपति जी हुए, इनके हुए तो उपराष्ट्रपति जी हुए, तो इनकी कोई नकल नहीं उतारता, ये उनसे अलग रहते हैं। और दूसरे और नेता हैं और हैं तो उसके कार्टून और लोग बना देते हैं, तो ये गलत है। संविधान के सिस्टम में सब लोगों को रहना चाहिए, पदों की गरिमाएं रखनी चाहिए। पर आप गरिमा की बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये तो एक कला है, किसी की नकल उतारना एक कला है, हंसी मजाक है। नहीं, कला नहीं, उनको किताब पढ़नी चाहिए पहले। संविधान में हमको सबको राइट दिए गए हैं। बच्चों की क्लास में भी ये बताया जाता था कि कुछ पद ऐसे हैं कि उनकी गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए, उनकी नकल नहीं उतारी जानी चाहिए, उनके कार्टून भी नहीं बनते। ये पहले तो संविधान में था, आज भी है ये, और ये किताबों में पढ़ा गया है। पर आपको लगता है कि ये जो जाट कम्युनिटी है या फिर जो किसान हैं, उनको ठेस पहुंची है? क्योंकि ये अब कहा जा रहा है, जो मोर्चे निकाले जा रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि किसान और जाट को इस बात से वो आहत हुए हैं। नहीं, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। वे उपराष्ट्रपति जी हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, वो जातियों से भी ऊपर है। किसान समाज जो गांव से आते हैं, गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, अगर वे किसी भी बिरादरी के होते, किसी भी जाति के होते, तो बिल्कुल निंदा हम उनकी करते हैं कि उन्होंने पदों की गरिमाओं का ख्याल रखना चाहिए। जिसने भी इस तरह की हरकत करी है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन इससे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसमें भी वोट तलाश कर रही हैं। हम उसको भी सचेत कर देना चाहते हैं कि इसको दूसरी तरफ ना लेकर जाए,
कि जाट समाज है वो खड़ा हो जाएगा, वो वैसे नहीं आ तो सरकार इस मुद्दे पर उनको साथ ले ले, वो गलत चीजें हैं। और जाट समाज हो या ठाकुर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, वो किसी भी जाति का, वो एससी बिरादरी हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, वो जिस पद पर चला गया उन पदों की गरिमाओं का हमको ख्याल रखना चाहिए, उनको जातियों में नहीं बांटना चाहिए कभी भी। पर आपको लगता है ये आप थोड़े बीच की लाइन ले रहे हैं इसमें? ना क्यों ना बीच की लाइन करें? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब उपराष्ट्रपति जी को भी पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं तो वो चीज गलत है, हम उसका विरोध करेंगे। ओके, आप इसका विरोध किसी पार्टी के नहीं है ना, तो दूसरी जातियां भी वो करेंगी, देश का जनता करेगी। जो विरोध कर रही है उपराष्ट्रपति जी सबके हैं, वे एससी ओबीसी के भी हैं, खाली एक समाज के नहीं है। वे उनको बांटने का काम ना करें, लेकिन जो सरकार के लोग हैं वो इसमें से भी वोट तलाश कर रही है, इसमें से वोट तलाश मत करें। ओके, वोट तलाश ना करें, पर जो पार्टीज आप सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ आपने स्टेज साझा किया है, कांग्रेस के साथ किया, आरएलडी का किया है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है। क्या आप राहुल गांधी को बताएंगे कि आपको लगता है कि गलत है? नहीं, मैं कह रहा कि भाई वो सभी नहीं बिल्कुल कहेंगे भाई वीडियो बनाना या कोई करना, कौन वो कर रहा है तो गलत है। अगर कोई चीज संविधान में गलत है तो हम उसको गलत मानते हैं। वे उपराष्ट्रपति जी हैं, वे सबके हैं, सभी पार्टियों के हैं, सभी जातियों के हैं, वे इन चीजों से ऊपर उठ गए हैं। अगर गलत है तो अपने लोगों को भी उनको कहना चाहिए कि नहीं ये गलत करा है, ये गलत है। और कुछ पदों की गरिमाएं हैं देश में, उन गरिमाओं को हमको बनाकर रखना चाहिए। वे किसी भी पार्टी का कोई आदमी है, जिसने भी गलत करा है वो गलत है, हम उसको निंदा करते हैं। एक सेकंड राकेश जी, आप हमारे साथ रहिए। आई वांट टू आस्क दिस, मनीषा अहलावत, हाउ डज अ पार्टी like the RLD, which draws its support from the Jat community, respond to something like this? Thank you for the question. मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारी पार्टी को आप जाट पार्टी ना कहिए, हम किसानों की पार्टी हैं, हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और युवा, महिला, सभी जाति, सभी धर्म। और जैसा कि अभी टिकैत साहब ने कहा, मैं उससे भी सहमति रखती हूँ कि एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा सभी को बना के रखनी चाहिए, उसको जाति में नहीं बांटना चाहिए और उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तो ये जो हो रहा है ये और भी गलत हो रहा है। जो पहले हुआ वो तो गलत हुआ ही, और अब हम जब इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तो वो और भी गलत हो रहा है। पर आप ये मानती हैं कि जो हुआ है, जो उनकी नकल की गई है, वो गलत है? ये आपने कांग्रेस को बताया है आरएलडी ने कि जो हुआ, या टीएमसी को कि जो हुआ वो गलत हुआ? देखिए, मैं यहाँ बैठी हूं और मैं बता रही हूं, और उससे भी गलत अब हो रहा है कि हम उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि, और जिन्होंने वो की मिमिक्री करी उन्होंने माफी भी मांग ली है। तो अब आप क्या चाहते हैं इस मुद्दे से? इसको इतना पॉलिटिकल क्यों बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सड़क पर आ जाएंगे जाट? क्यों आ जाएंगे जाट सड़क पर? पूरा हिंदुस्तान आए ना सड़क पर, बताइए। तो सभी के उपराष्ट्रपति हैं। राजेश चौधरी, आप जो राजनीतिकरण बड़ा कर रहे मुद्दा हैं, है, दोनों आरएलडी और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये ज्यादा गलत है कि आप अब वाइस प्रेसिडेंट को उनकी जात से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, हम कोई इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे, न हमारी पार्टी ने कोई आंदोलन किया है, न भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के अंदर पुतले जला रहे हैं तो वही समाज जला रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, राकेश टिकैत जी आज नेता हैं तो इनका गांव, इनका क्षेत्र और इनका समाज सब इन पर गौरव महसूस करता है ना जी, क्या हमारे नेता हैं, हमारे गांव से निकल करके और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उसी तरह से राजनीति में भी है। अब जगदीप धनखड़ जी सामान्य किसान परिवार से, जाट परिवार से आकर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए और देश के एक बड़े पद पर पहुंच गए, तो इसमें हमारे समाज को सम्मान का अनुभव तो निश्चित रूप से होगा।
हमारा सीना तो ऐसे ही फूल जाएगा। नहीं, पर ये जो आप कह रहे हैं कि अब हम नेशन वाइड एजिटेशन करेंगे या फिर ये बोलना कि भाई वो जाटों का अपमान हो रहा है, आज तो यही बोला ना कि किसान पुत्र का अपमान हुआ, जाट्स का अपमान हुआ, ये क्योंकि आपका खुद का रिलेशन जाट्स के साथ काफी डिफिकल्ट रहा है। आपका जो जाट एजिटेशन हरियाणा में हुआ था, उसके बाद जो रेसलर्स प्रोटेस्ट 2023 में इस साल की शुरुआत में हुआ था, उससे पहले आपने मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी जाट को नहीं बनाया, तो उस सब को छोड़ करके अब उनको एसुएज करने की कोशिश है। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। जब हमको गौरव महसूस होता है, हमारा कोई व्यक्ति समाज का आगे बढ़ता है, तो बेइज्जती भी समाज की है ना साथ साथ, क्यों नहीं है? कैसे नहीं होगा? कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं खड़ा किया। आज मैं आपके बीच पार्टी का प्रवक्ता हूं, विधायक बन के बैठा हूं, तो मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा रहता है ना। उनको लगता है ना कि हमारा बेटा आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। जब मैं कोई गलत काम करूंगा और मेरा कोई अपमान करेगा, राकेश टिकैत से कोई बदतमीजी करेगा, तो मुझे भी फील होगा, मुझे भी होगा। इनका अपमान कोई करेगा तो मुझे भी फील होगा, सबको फील होता है। मनीषा जी, ये राजनीति नहीं है, ये सम्मान है। और ऐसे पद की है जो देश का सर्वमान्य पद है, जो संवैधानिक पद है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। एक बात बताइए, अभी जो स्पीकर साहब हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनको तो ये प्रिविलेज है कि वो सरकार में है और उनके साथ देखिए कितने तमाम नेता भी खड़े हो गए हैं। मैं इन सभी नेताओं से, मान लीजिए ये जाट समाज की इतनी फिक्र कर रहे हैं, तो ये जब पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी तब क्यों नहीं सड़क पर आए थे? और अगर आपको इतना ही फिक्र है जाट का, तो बना देते राजस्थान में मुख्यमंत्री जाट को, क्यों नहीं बनाया आपने? बताइए राजेश जी। राजस्थान के अंदर अनेक बड़े बड़े पदों पर जाट हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक बड़े बड़े पदों पर जाट हैं, केंद्र सरकार के अंदर अनेक बड़े पदों पर जाट हैं, देश के अनेक राज्यों में जाट गवर्नर हैं। हम तो दे रहे हैं ना बराबर सम्मान साहब, दे रहे हैं ना। सामान्य परिवारों से आते हैं। कोई हमारे पिताजी बहुत बड़े राजनेता थोड़ा थे, हम आकर के पार्टी में अपनी मेहनत से जगह बनाई है, ऐसे ही धनखड़ साहब ने बनाई है। प्रश्न मान सम्मान का है, प्रश्न अपमान का है, और एक संवैधानिक पद के अपमान का समाज तो महसूस करेगा। और हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम आया हो तो बताइए। अब आप पूछेंगे तो बोलना तो होगा, मीडिया जब प्रश्न करेगा तो जवाब देना ही होगा। अब जब समाज खुद ही आंदोलन कर रहा है तो इसका नहीं सर, वैसे तो आपके पार्टी के सांसदों ने भी आज प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि किसान पुत्र और जाटों का अपमान हुआ है। जो आपके संजीव बालियान है, उन्होंने कहा कि ये जाटों का अपमान है। आपके जो और एमपीज हैं उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने कहा जाटों का अपमान है, और सारे जाट एमपीज एमएलएज ने बोला भाजपा के। तो मैं भी कह रहा हूँ कि अपमान है। अरे किसी समाज का कोई व्यक्ति एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है तो समाज का भी अपमान है ही, ये तो मैं भी कह रहा हूं। ठीक है, I'll give the final word to Sabha Naqvi. Sabha Naqvi, here's the thing, you know, from the stance of say somebody like a Rakesh Tikait, yes, कि मैं बस एक कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ मर्दों का अपमान नहीं होता है। आप गौर करिए कि महिलाओं का भी अपमान हो जाता है, और अभी हाल में ही, और ये मैं पॉलिटिकल लाइंस में, आप भाजपा की महिला एमपीज ने कहा कि उनको वक्त नहीं मिल रहा, वो चाहेंगे कि ज्यादा उनकी आवाज आए पार्लियामेंट में, उनको ज्यादा टाइम मिले बात करने के लिए। और जो बात है कि जो हमारी पहलवान जाट जो पहलवान बैठ गई थी, उनका भी अपमान, उनका तो बहुत ही सीरियस अपमान, धनखड़ जी का तो कुछ भी नहीं है। ये सब आप मर्दों की बात कर रहे हैं, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। बस यही नोट होगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। Okay, I'm going to leave it at that because I think this is going to be a much more long-drawn debate that will happen once the protests actually start. Will there actually be a mobilization? Will the community buy into the argument that this is an insult of the entire community? We'll keep a close watch. Thanks very much, all gentlemen, Manisha Ahlawat and Sabha Naqvi for joining me. The other big story that we are tracking today, the fourth meeting